एक दुआ मिल गई, तपन में मौसम में ठंडी हवा मिल गई। आप आए श्रीमान जी यूं लगा, आप आए श्रीमान जी यूं लगा, जैसे तकलीफ को कुछ दवा मिल गई, जैसे तकलीफ को कुछ दवा मिल गई। Our winner, our, our wheel has done a full circle once more, and we are now into the inner wheel year 2020-21. And here we are going to talk so on secrets to reversing disease and women health. जी हाँ, इसी तरह हमारी डिसीज को हटाने एवं हमें स्वस्थ बनाने की कुंजी लेकर आए हैं आज के हमारे स्पीकर। सो प्लीज वेलकम मिस्टर करणजी कक्कड़। इनका संक्षिप्त परिचय देने के लिए मैं निवेदन करती हूँ हमारे क्लब के आईएसओ को कि कार्तिकी शाह प्लीज इनका इंट्रोडक्शन दे। Thank you so much, Preeti ji. Are you hear me? Yes. Hello? हाँ. हाँ. A very good afternoon, one and all. Education is more important than medication to reverse lifestyle disorder. It's an honor itself to introduce today's speaker, disease reversal expert, Mr. Karan Kakkad, founder of Reverse Factor, who is going to guide us how to reverse disease and build immunity with right food. Karan Kakkad is an international nutrigenomics and disease reversal expert based in India. He is an expert in holistic nutrition and also associated with American Fitness Professionals and Associates. His passion in medical nutrition led to the birth of Reverse Factor, which is backed by an extensive research in the field of nutrigenomics, the scientific study of the interaction of nutrition and genes. Nutrigenomics has recognized the word of prevention, treatment, and reversal of lifestyle disease. He is doing PhD in epigenetics and neuroscience. He personally consults some of country's best-known business tycoon, Mr. and Mrs. Ambani, Mr. Bajaj, the automobile tycoon of India, and likewise many others. Now may I call upon the one whom we are eagerly waiting for, a man of distinct vision, Mr. Karan Kakkad. Sir, please. Very good afternoon, everyone. Can we have everyone on mute, please, Shirin? Shirin, if you can have everyone on mute, that will be great. प्लीज आप अनम्यूट कर लीजिए सर। Perfect. So very good afternoon, everyone, and thank you so much for getting this organized. It is very exciting to meet dynamic people like all of you and to share what we feel can help you in your overall health. आज हम यहाँ जितने भी जन हैं, okay, हम सब के लिए सबसे जरूरी क्या है? I can see there are more than 40 people today, and आज हम जितने भी जन यहाँ पे हैं, हम सब के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? The most important thing for all of us is that जब हम 60, 70, 80 साल के हुए, we should be fit, fine, healthy. इससे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है कि जब हम 60, 70, 80 साल के होते हैं, we should be fit, fine, healthy. And the only way to be fit, fine, healthy in our 60s and 70s and 80s is अगर हम हमारी आदतों में ध्यान दें. Okay, I repeat, दुनिया में सबसे घटिया वर्ड इज डाइट. कोई भी इंसान को कभी भी डाइट करना ही नहीं चाहिए. करेक्ट? सीरियसली हम आपको बता रहे हैं. लास्ट 6 साल 7 साल से हम इतने पेशेंट देख रहे हैं, डायबिटीज, थायराइड, ओवरवेट, फैटी लिवर, कोलेस्ट्रॉल, और खाने पीने से वो कैसे रिवर्स करते हैं. आज हम आपको काफी सारी चीजें बताएंगे. बट एक चीज जो हमने लास्ट 6-7 साल में देखी है कि दुनिया में सबसे घटिया वर्ड इज डाइट. कोई 100 साल पहले कितने जन डाइट करते थे? हार्डली एनीवन. इट इज ऑल अबाउट हैबिट्स.
अगर हमको 60, 70, 80 साल में फिट रहना है तो हमारी आदतें अच्छी होनी चाहिए, ना कि कोई डाइट। ओके, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समझना। पॉइंट नंबर 1 कि हमारी आदतें अच्छी होनी चाहिए। वंस इन अ वाइल अगर आपको पुचका खाना है, चॉकलेट खाना है, पेस्ट्री खाना है, इट इज ओके, बट डे टू डे हम चॉकलेट, पेस्ट्री, पुचका नहीं खा सकते। डे टू डे हम पिज्जा, बर्गर, सबवे ये सब नहीं खा सकते। वंस इन अ वाइल, 15 दिन में एक बार, 10 दिन में एक बार, महीने में 1-2 बार, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट वॉट मैटर्स इज कि हम डे टू डे क्या करते हैं। हमारी आदतें इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रादर देन एनी डाइट्स। अगेन हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें 60, 70, 80 साल तक फिट रहना है। तो डाइट करके तो कभी काम नहीं आएगा। हमारी आदतें अच्छी होगी तो ही हम 40 साल और आराम से फिट रह पाएंगे। ये हो गया मैसेज नंबर 1। Before we proceed the presentation, I want to give you 2 important message. Number 1 message कि हम आदतों में ध्यान देंगे, ना कि कोई डाइट। दूसरा important message is that हमें हमेशा बताया गया है that things like diabetes, fatty liver, thyroid, blood pressure, cholesterol, uric acid, joint pain, arthritis, heart problem, ये जितनी भी बीमारी है ये सब लाइफ लॉन्ग डिजीज है। हमें ये बताया गया है। डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर, थायराइड है, कोलेस्ट्रॉल है, एक बार गोली खाओगे लाइफ लॉन्ग आपको गोली खानी है। दैट इज व्हाट वी हैव बीन टोल्ड। बट द ट्रुथ इज, सही बात ये है दैट जितनी भी ये डिजीज है, लाइफस्टाइल डिजीज, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, वाटर रिटेंशन, नी पेन, बैक पेन, ये जितनी भी डिजीज है ये लाइफ लॉन्ग डिजीज नहीं है, ये लाइफस्टाइल डिजीज है। 100 साल पहले कितने जन को डायबिटीज, कितने जन को हाई ब्लड प्रेशर, कितने जन को थायराइड प्रॉब्लम। बट if you see last 30, 40, 50 years, all these lifestyle diseases have started going up. Okay, so हम हमारे खाने पीने से, हमारे विचार से, हमारे लाइफस्टाइल से क्या इसे रिवर्स कर सकते हैं? एंड द आंसर इज एब्सोल्युटली यस। अगर हजारों जन कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, राइट? बट आई टेल दिस टू ऑल माय पेशेंट्स। ओके, सारे पेशेंट को हम ये बात बोलते हैं कि दुख का कारण अज्ञान है। हमें सही चीज का ज्ञान न हो तो हम गलत चीज करें, जिससे गलत रिजल्ट आते हैं। ओके, तो सबसे पहला स्टेप है सही ज्ञान। सही चीज का ज्ञान होना चाहिए। तो आज का हमारा ये जो पूरा सेशन है, दैट विल बी वेरी हाईली नॉलेजेबल सेशन, और हम चाहते हैं कि आप पूरा ध्यान से इसको समझें। आपको कुछ भी नहीं समझ में आए, आप 1000 बार हमें पूछ सकते हैं, बट हम चाहते हैं कि आप एकदम ध्यान से समझें, एंड हम बहुत आराम से समझाएंगे। एनी प्रॉब्लम यू आस्क मी 10 टाइम्स, बट जब हम 1-1.5 घंटे बाद यहाँ से बाहर जाएं, we should be very very happy and very very empowered with right knowledge. That is very important. Okay, so thank you so much everyone once again for coming in. And before I start today's session, one thing that all of you should know is that your health is in your hands. आपकी हेल्थ आपके हाथ में है, और एब्सोल्युटली पॉसिबल कि हम 60, 70, 80 साल तक फिट रह सकते हैं। ओके, कैसे रहना, क्या करना, इम्यूनिटी कैसे बढ़ाए, बीमारी को कैसे रिवर्स करें, हेल्थ को कैसे अच्छा करें, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सो एनी क्वेश्चंस यू हैव, फील फ्री। चैट बॉक्स है, उसमें आप टाइप करेंगे सो दैट आई कैन सी योर क्वेश्चंस, और हम उसी टाइम में आंसर करेंगे। बट हमें सही चीज समझना बहुत जरूरी है, राइट? सो देयर इज अ प्रेजेंटेशन आप लोग सबके सामने। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड प्लीज फोकस ऑन द प्रेजेंटेशन अभी जो आपके सामने खुली हुई है। Now, what are we expecting out of today's session? Number 1, long-term health versus short-term health. Okay, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि हमें शॉर्ट टर्म में नहीं सोचना है। हमें ये नहीं सोचना है कि यू नो कि 3 महीना में 15 किलो कम हो जाए, 3 महीना में 10 किलो कम हो जाए। नहीं, वैसा नहीं सोचना है। वजन कम होगा, पर हमें कंसिस्टेंसी के बारे में सोचना है, जल्दी जल्दी के बारे में नहीं सोचना है। हमें ये सोचना है कि भले हर महीना, ओके, हर महीना हमारा 2 किलो ही कम हो, ठीक है, पर वो 2 महीना लगातार हमारा 6 महीना चलना चाहिए। हर महीने महीने हमारा 2 किलो कम होना चाहिए 5-6 महीने तक, सो दैट 5-6 महीने के बाद हमें 5-6 महीने के बाद हमें 10 किलो, 11 किलो, 12 किलो दिखना चाहिए।
ओके, सो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट इज कि हमें लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना चाहिए, ना कि शॉर्ट टर्म के बारे में. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो दैट इज नंबर 1. नंबर 2, वुमेन हेल्थ एंड वेलनेस की आज हम बातें करेंगे. व्हाट आर फ्यू थिंग्स जो कॉमन इश्यूज जो आजकल काफी वुमेन में होती है और उनकी क्या सॉल्यूशंस है, तो कुछ कुछ हम आपको आज बताएंगे. नेक्स्ट, व्हाट आर हेल्दी हैबिट्स. जैसे हमने डिस्कस किया कि दुनिया में सबसे घटिया वर्ड है डाइट, और इट इज नॉट अबाउट डाइटिंग, इट इज ऑलवेज अबाउट राइट हैबिट्स. कम नहीं खाना है, हमें पहले से ज्यादा ही खाना है, पर हमें सही चीज खाना है और बुरी चीज हमें कम करनी है. ओके, इट इज ऑलवेज अबाउट ईटिंग राइट rather than eating less. okay, so उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि हम कैसे हेल्दी हैबिट्स बनाएं जिससे हम सही खा खा के भी हमारी हेल्थ अच्छी रख सकते हैं. नंबर 4 इज हाउ डू वी बिल्ड इम्यूनिटी. नाउ इम्यूनिटी के बारे में अभी काफी चर्चा हो रही है एंड फॉर राइट रीजंस. तो आज हम इम्यूनिटी के बारे में सब कुछ आपको समझाएंगे और कैसे इम्यूनिटी बढ़ेगी खाने पीने से, उस पे हम आपको काफी इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे. सो दैट इज समथिंग दैट वी विल आल्सो अंडरस्टैंड. एंड लास्ट इज टॉप 10 थिंग्स. कौन सी ऐसी 10 चीजें हैं जो आप कल से कर सकते हैं आपके घर पे, जिससे आपका ओवरऑल हेल्थ एंड इम्यूनिटी काफी अच्छा रहेगा. ओके, सो कौन सी ऐसी 10 चीज है जो आप कल से कर सकते हैं घर पे, जिससे आपका ओवरऑल इम्यूनिटी और हेल्थ अच्छी रहेगी, वो हम आपको लास्ट में शेयर करेंगे. सो ध्यान से समझे, आज का सेशन आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग रहेगा as far as knowledge is concerned. Now moving ahead, so the science that we practice is known as nutrigenomics. Okay, nutrigenomics मतलब खाने पीने से, न्यूट्रिशन से हमारे जीन्स कैसे चेंज होते हैं. So that is known as nutrigenomics. कि खाने पीने से हमारे जीन्स कैसे चेंज होते हैं, it is known as nutrigenomics. Just go back, Gargi. So nutrigenomics is मतलब न्यूट्रिशन से हमारे जीन्स कैसे चेंज होते हैं. Okay, that is something that we understand. Now, broadly speaking, there are two type of disease. Number 1 is acute disease, more infection driven, and number 2 is chronic disease, which is more lifestyle disease. Okay, now infection disease is polio, malaria, dengue, उस टाइप का. Okay, and lifestyle disease is high blood pressure, diabetes, heart disease, thyroid, joint pain, उस टाइप की बीमारी. Okay, now 100 साल पहले कौन सी बीमारी ज्यादा थी? इन्फेक्शन डिजीज, पोलियो, मलेरिया, डेंगू. ओके, एंड लास्ट 30-40 इयर्स में लाइफस्टाइल डिजीज बहुत बढ़ चुकी है एंड इन्फेक्शन डिजीज हैव गॉन डाउन ड्रास्टिकली. ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो हमें इन्फेक्शन, द प्रॉब्लम क्या है? 1920 1930 में ओके, डेथ इन इंडिया because of lifestyle disease is 10%, but 2015 में death in India because of lifestyle disease was 67%. Okay, now very very important, we need to understand this कि 67 मतलब अगर 100 जन मरते हैं, okay, so 67 okay out of them die because of lifestyle disease. Okay, that should not exist in the first place, right? Now, next, few common lifestyle disease, Shruti, let's run them. So every 33 seconds, someone in India dies because of heart attack. 3 out of 10 Indians have high cholesterol level. 40% Indians have joint pains. 1 out of 3 have high blood pressure. 1 out of 5 have fatty liver. You know, आजकल हमारे पास छोटे बच्चे 25 साल, 27 साल, 30 साल के लड़के लोग आते हैं जिनको फैटी लिवर है. अभी ये कोई उम्र थोड़ी ना है फैटी लिवर होने की, राइट? सो लास्ट पॉइंट देखेंगे, चाइल्ड ओबेसिटी, छोटे बच्चे जो ओवरवेट है, लास्ट 30 years में those people, okay, I mean the last 30 years में the
people who have child obesity, the number of people who have child obesity has gone up 100%. मतलब 30 साल पहले अगर इंडिया में 10 लाख बच्चे ओवरवेट थे, तो आज वो 20 लाख के ऊपर हो चुके हैं, right? So I mean, if all lifestyle diseases increasing, okay, so what is the solution? That is something that we need to understand, right? So we all know that lifestyle disease बढ़ रहा है, so हमें करना क्या है? That is very important. So the answer to lifestyle disease is not another medicine or pill, but the answer to lifestyle disease is lifestyle intervention. Your food, your lifestyle, your exercise, these things are the answer to your lifestyle disease. Okay, now अभी यहाँ से काफी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझेंगे. Any food on this planet, okay, any food on this planet, okay, can be divided into 3 broad categories. Number 1 is animal food, number 2 is processed food, number 3 is plant food. इसके बाहर तो कुछ नहीं है. कोई भी खाना है इस दुनिया में, कोई भी खाना है वो या तो एनिमल फूड होगा, ओके, या तो प्रोसेस फूड होगा, या तो प्लांट फूड होगा. सो आप हमें चैट बॉक्स में आप लोग टाइप करके बताएंगे अभी कि आपके हिसाब से इस तीनों में से कौन सा सबसे अच्छा है. एनिमल फूड, प्रोसेस्ड फूड, प्लांट फूड, आपके हिसाब से इस तीनों में से कौन सा अच्छा है, एक बार चैट बॉक्स में टाइप करके हमें बताइए. शिल्पा जी से प्लांट फूड्स, कार्तिकी मीनल से प्लांट फूड्स, ओके. Great, Neetaji plant foods, Sukriti plant foods, perfect, great. नागपुर वाले very very happy, सही चीज का ज्ञान रखते हैं आप. So most of you have answered कि plant food is comparatively much better, okay, than animal and processed foods. Okay, so let us understand. Thank you so much everyone for the comments. Thank you so much. Now let us understand, okay, let us understand what does science say. तो animal food मतलब क्या है? Animal food मतलब non-veg and milk, which is animal protein. Now processed food कोई भी चीज जो पैकेट में आता है, भुजिया, चिप्स, कुरकुरे, कॉर्नफ्लेक्स, बिस्किट, anything that comes in a packet. Plant food मतलब fruit, vegetables, sprouts, राजमा, छोला, वो सारी चीजें. Now, what does science say? Scientifically proven that animal food and processed foods trigger lifestyle disease, okay, whereas plant foods reverses lifestyle disease. Very very important, ध्यान देंगे. Animal food and processed foods trigger lifestyle disease and plant food reverses lifestyle disease. Okay, now many reason, तो मतलब प्लांट फूड जो है उससे बीमारी रिवर्स होती है और एनिमल एंड प्रोसेस फूड से बीमारी ज्यादा बढ़ती है. ओके, नाउ देयर आर मेनी रीजंस व्हाई प्लांट फूड इज मच बेटर, बट हम टॉप 2 रीजंस देखेंगे. ओके, टॉप 2 रीजंस देखेंगे. ओके, द टॉप 2 रीजन व्हाई plant food is much better, okay, compared to animal and processed foods. Number 1 is antioxidant. ओके, एंटीऑक्सीडेंट मतलब क्या? आज एप्पल को काट के बाहर रखो ना तो वो काला हो जाता है, राइट? भुजिया, ब्रेड, बिस्किट को काट के बाहर रखो तो वो काला नहीं होता है. ओके, तो अब हम वी आर लिविंग सेल्स, हमारे अंदर लिविंग सेल्स है, तो हमको भी वही खाना चाहिए जो हमारे अंदर जाके अच्छा करेगा, जिसमें जान होनी चाहिए. लिविंग सेल में लिविंग बॉडी में लिविंग सेल ही जाना चाहिए. सो इस तीनों में एंटीऑक्सीडेंट भर भर के कहां मिलेंगे? प्लांट फूड. ओके, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इज फाइबर. जो इंसान फाइबर खाता है ना
उसको कभी ओवरवेट, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम होता नहीं है। ओके, और इस तीनों में फाइबर कहाँ मिलता है? फाइबर इज फाउंड ओनली एंड ओनली इन प्लांट फूड्स। ओके, मतलब जब आप पपीता खाएं, अनार खाएं, अमरूद खाएं, रेड येलो ग्रीन कैप्सिकम खाओ, गाजर खाओ, तो आपके अंदर फाइबर अच्छा जाता है। ओके, एंड फाइबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, दूसरा तरीका खाने का देखने का है इस मैक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट में प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स, ये हमने सुना है, इतना प्रोटीन खाना चाहिए, इतना कार्ब खाना चाहिए। एंड अनदर इज माइक्रोन्यूट्रिएंट। ओके, माइक्रोन्यूट्रिएंट मतलब विटामिन, मिनरल्स एंड फाइटोन्यूट्रिएंट्स। ओके, नाउ अगेन सिंपल चीज वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट फाइटोन्यूट्रिएंट मतलब माइक्रोन्यूट्रिएंट में अगर हमें लॉन्ग टर्म हेल्दी रहना है ना, ओके, लॉन्ग टर्म हेल्दी रहना है, सो सुकृति जी हम आंसर करते हैं आपके क्वेश्चन का, जस्ट लेट मी फिनिश दिस स्लाइड। सो हमें अगर लॉन्ग टर्म हेल्दी रहना है तो अपार्ट फ्रॉम माइक्रोन्यूट्रिएंट हमारे फोकस में होना चाहिए कि खाने पीने से हमारे अंदर कितने विटामिन, मिनरल्स, कितने माइक्रोन्यूट्रिएंट जा रहे हैं। ओके, कितने विटामिन, मिनरल्स, ओके, हमारे अंदर कितने विटामिन, मिनरल्स जा रहे हैं खाने पीने से, कितने फाइटोन्यूट्रिएंट जा रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट इज दिस फाइटोन्यूट्रिएंट? फाइटो मतलब प्लांट। ओके, फाइटो मतलब प्लांट। सो फाइटोन्यूट्रिएंट मतलब कि हमारे अंदर कितने न्यूट्रिएंट प्लांट फूड से जा रहे हैं जिसमें अलग अलग कलर है। ओके, मतलब रेड, येलो, ग्रीन कैप्सिकम, गाजर, जितने ज्यादा कलर खाओगे उतने ज्यादा हमारे अंदर फायदे जाएंगे। नेक्स्ट, नाउ big study had shown that 74% people do not eat enough red, 69% people do not eat enough green, 83% people do not eat enough white. Now we need to understand, okay, we need to understand that देखिए अभी जैसे व्हाइट आपके सामने व्हाइट लिखा है ना, उसमें देखेंगे थिंग्स लाइक EGCG और एलिसिन। ओके, ये सब है कंपाउंड्स जो व्हाइट कलर के अंदर पाए जाते हैं। ओके, हमें टेक्निकल नाम में नहीं जाना है बट अपने पॉइंट समझते हैं। जो एलिसिन नाम का कंपाउंड है वो गार्लिक के अंदर पाया जाता है। गार्लिक समझते हैं हम लोग सब। सो गार्लिक के अंदर एलिसिन नाम का कंपाउंड पाया जाता है विच इज वेरी गुड फॉर एंटी कैंसर, वेरी गुड फॉर फैटी लिवर, वेरी गुड फॉर कोलेस्ट्रॉल। ओके, तो जितने ज्यादा आप कलर खाओगे अलग अलग, आपको अलग अलग फायदे मिलेंगे। ओके, लेट्स जस्ट गो बैक श्रुति एंड शो देम द ग्रीन। नाउ ग्रीन में देखिए जो सबसे लास्ट वर्ड है उसमें लिखा है सल्फोराफेन। सबसे लास्ट वर्ड जो है ग्रीन के सारे पॉइंट्स में, उसमें लिखा है सल्फोराफेन। नाउ सल्फोराफेन इज अ कंपाउंड जो ग्रीन वेजिटेबल्स में पाया जाता है विच इज वेरी गुड फॉर डायबिटीज, which is very very good for fatty liver and very good for gut bacteria, पेट के लिए अच्छा है। ओके, सो कहने का मतलब क्या है कि हमारे अंदर पूरे दिन में ज्यादा से ज्यादा कलर जाना चाहिए जिससे हमें बहुत फायदा मिलेगा। नेक्स्ट, so 80% people do not eat enough yellow and orange, 76% people do not eat enough purple and blue। okay, so हमारे अंदर ज्यादा से ज्यादा कलर जाना चाहिए। now just go back। Now real time example, real life example I want to share with all of you, ध्यान से समझेंगे। okay, now so जब हमारे पास कोई पेशेंट आते हैं ना जिनको वेट कम करना हो, डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, गैस, एसिडिटी, बैक पेन, नी पेन, अर्थराइटिस, कोई भी इस प्रकार के पेशेंट आते हैं ना, तो हम उनसे ना पहले 2 पेज का फॉर्म भरवाते हैं। कितने बजे उठते हैं, उनकी नींद कैसी है, पेट साफ होता है ना, गैस होता है क्या, प्रॉपर उनका 2 पेज का हम फॉर्म भरते हैं जिससे हमें आइडिया लग जाता है कि हमें क्या क्या चीज अच्छा करना है। किसी का नींद भी अच्छा करना होता है, किसी को गैस बहुत होता है, किसी का घुटने में दर्द होता है, तो एवरी सब चीज ठीक होनी चाहिए। तो हम उनसे प्रॉपर फॉर्म भरवाते हैं। फिर हम उनको सवाल पूछते हैं कि सुबह से लेकर रात तक आप क्या खाना खाते हैं। ध्यान से समझेंगे। एंड 90% लोग हमें क्या आंसर करते हैं मालूम है? 90% लोग हमें क्या आंसर करते हैं कि सुबह उठ के हम चाय बिस्किट लेते हैं, फिर नाश्ते में पोहा भुजिया कुछ खाते हैं, फिर लंच में रोटी सब्जी दाल चावल, शाम को चाय बिस्किट और रात को डिनर।
90% हमें यही जवाब देते हैं कि सुबह चाय बिस्किट, फिर पोहा भुजिया, फिर लंच, शाम को चाय बिस्किट और डिनर। ओके, सो जो इंसान इस तरीके से खाता है, अगर लंच एंड डिनर जो नॉर्मल घर का खाना है उसको अगर हम 2 सेकंड के लिए साइड में रखें, तो पूरे दिन में उस इंसान के अंदर जो चाय बिस्किट पोहा भुजिया शाम को चाय बिस्किट खाता है लंच डिनर के अलावा, पूरे दिन में उनके अंदर लंच और डिनर के अलावा, पूरे दिन में उनके अंदर लंच और डिनर के अलावा कितना फाइबर गया, कितना प्लांट फूड गया, कितने विटामिन मिनरल गए, कितना न्यूट्रिशन गया, नहीं के बराबर। समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं? सो लंच एंड डिनर तो हमें करना ही है, विच इज रोटी सब्जी दाल चावल, घर का खाना खाएंगे ही। पर लंच डिनर के अलावा हमारे अंदर पूरे दिन में कितना न्यूट्रिशन जाता है, कितना प्लांट फूड जाता है, वो चीज पे गौर करना बहुत जरूरी है। हम आपको वापस बता रहे हैं कि हमें कम नहीं खाना है, पर सही चीजें हमें ज्यादा खानी है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो बिफोर आगे बढ़े उसके पहले हम ये इनका क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं एक जन का। सो देयर वाज दिस क्वेश्चन बाय सुकृति। सुकृति ने क्वेश्चन पूछा है कि आजकल वेजिटेबल में केमिकल्स होते हैं, उसका क्या? सो हमें एक चीज समझना है सुकृति जी। सो हमने जैसे आपको बताया दैट एप्पल को काट के बाहर रखो तो काला हो जाता है, राइट? भुजिया ब्रेड बिस्किट को काट के बाहर रखो तो वो काला होता नहीं है, करेक्ट? क्योंकि एप्पल के अंदर जान है, उसमें लिविंग सेल है, पपीता में लिविंग सेल है, गाजर में लिविंग सेल है। ओके, उसके अंदर जान है। नाउ अगर एप्पल में इंजेक्शन हो, केमिकल मारा हो या कोई इंजेक्शन मारा हो, तो अग्रीड कि वो एप्पल जो है वो केमिकल फ्री नहीं है, ऑर्गेनिक नहीं है, फ्रेश नहीं है। पर उसमें अगर उसमें जान है तो वो लिविंग सेल लिविंग बॉडी में जाके काम करता है। अग्रीड, अगर पेस्टिसाइड है तो 100% ना करे, 70% करेगा। पर लिविंग सेल हो, अगर वो एप्पल काला नहीं होता है तो वो हमारे लिए कोई काम का नहीं है। पर अगर एप्पल में जान है, संतरा मौसमी में जान है, तो वो हमारे अंदर जाके काम करेगा। और खाली ये सोचना कि एप्पल में इंजेक्शन मारा होगा या एप्पल में केमिकल होगा तो हम एप्पल नहीं खाते, चलो अपने भुजिया ब्रेड सैंडविच खाते हैं, वो बात ठीक नहीं है कि नहीं? तो लेट अस फोकस ऑन जो हमारे कंट्रोल में है, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए, राइट? नेक्स्ट आगे बढ़े। सो देर इज समथिंग नोन एज पीएच स्केल, जैसे आपके सामने दिख रहा है। 0 to 14 इज द स्केल, 7 इज न्यूट्रल। ओके, 7 to 14 है अल्कलाइन, 0 to 7 है एसिडिक। सो बॉडी में या तो अल्कलाइन होता है या एसिडिक होता है। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, साइंटिफिकली प्रूवन दैट हमारा बॉडी अल्कलाइन होना चाहिए। अगर हमारा बॉडी ज्यादा एसिडिक होगा तो बीमारी ज्यादा बढ़ेगी। साइंटिफिकली प्रूवन, कैंसर सेल्स ग्रो डबल फास्ट व्हेन बॉडी इज एसिडिक एंड नॉट अल्कलाइन। तो हमको अल्कलाइन होना जरूरी है। ओके, नाउ फास्टिंग इज एसेंशियल इज अ गुड क्वेश्चन। हम फास्टिंग के बारे में कुछ कवर करेंगे, सो एक बार के लिए वेट करो, हम उसको आंसर करेंगे। नाउ blood pH is around 7.35 to 7.45. Okay, which means that body is blood is alkaline, body tends to be alkaline. Okay, milk has a pH of around 6, which is acidic in nature. Okay, so milk product are little acidic in nature. दुनिया में सबसे घटिया खाने पीने में अगर कोई कैटेगरी होता है ना, तो वो होता है कोल्ड ड्रिंक्स। आपके सामने दिख रहा है कोल्ड ड्रिंक। नाउ पीएच ऑफ, हमको देखो अल्कलाइन होना चाहिए, बट पीएच कोल्ड ड्रिंक का कितना है? 2 to 3, एकदम हाईली एसिडिक। बॉडी में जाके हार्मोनल इम्बैलेंस करता है, वेट बढ़ाता है, पीसीओडी करता है, थायराइड करता है, लॉट ऑफ प्रॉब्लम। सो कोल्ड ड्रिंक जो है ना, उसको कभी कभार साल में 1 बार 2 बार, बर्थडे एनिवर्सरी वैसे ही लेना चाहिए, उससे ज्यादा लेना नहीं चाहिए, है ना? नेक्स्ट, so when we eat more plant foods we are more alkaline. Okay, so one more reason कि हमें क्यों plant food ज्यादा खाना चाहिए, right? We need to be more alkaline. Next, now there is something known as blue zones. Okay, blue zone मतलब क्या है? पूरी दुनिया में जो भी कंट्रीज है ना,
जिसमें लोग सबसे ज्यादा लंबा जीते हैं और सबसे हेल्दी जीते हैं, कि 80 साल में वॉकिंग कर रहे हैं, 80 साल में ऑफिस जाते हैं, 90 साल में ऑफिस जा रहे हैं। तो जो जो जगह है पूरी दुनिया में, विश्व में, वैसी 7 जगह है जहाँ पे लोग सबसे लंबा जीते हैं और सबसे हेल्दी भी जीते हैं। तो ऐसा नहीं कि खाली 110 साल का जी रहे हैं, नहीं, वो 100 साल में हेल्दी भी रहते हैं। ओके, तो वो लोग क्या करते थे उससे हमें समझना चाहिए। नेक्स्ट, सो वैसी कुछ जगहों को हमने शॉर्टलिस्ट किया और उसमें से क्या क्या चीजें हम लर्न कर सकते हैं जो बीच में कॉमन चीजें हैं। सो नंबर 1, इन 95% से ज्यादा लोग खाते थे प्लांट फूड्स, नेचुरल रियल फूड खाते थे। दूसरी चीज जो सीखी, इसमें 95% से ज्यादा लोग कोई स्मोकिंग नहीं करते थे, बहुत कम, कभी कभार कर लिए, रेगुलर में कोई स्मोकिंग नहीं करते थे। तीसरी चीज क्या सीखने मिली, तीसरी चीज ये समझने मिली कि इन जगहों में, कोई भी जगह में, 7 जगहें थी, कोई भी 7 जगहों में से एक भी जगह में देयर वर नो जिम। ओके, एक भी जिम नहीं था, परंतु लोग पूरे दिन काफी एक्टिव रहते थे। मतलब अगर किसी के घर जाना है तो चल के 10 बार चले जाएंगे, किसी को चर्च जाना है तो 5 बार चल के चले जाएंगे। सो दिन भर काफी एक्टिव रहते थे रादर देन 1 घंटा के लिए जिम जाना। नेक्स्ट, पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं एक बार, अगर किसी को डायबिटीज का प्रॉब्लम हो तो विंटर में ब्रोकली आती है विच इज वेरी वेरी गुड, भिंडी इज वेरी गुड, फ्रेंच बीन्स जो नॉर्मल बीन्स होता है, लाल पत्ता गोभी भी विंटर में आती है, ये सब डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है। कुंदरू, कुंदरू समझते हैं आप लोग? कुंदरी परवल की तरह छोटा होता है, क्या कहते हैं आप लोग? परवल की तरह ही दिखता है, थोड़ा सा छोटा होता है साइज में। ओके, सो इट इज वेरी वेरी गुड फॉर डायबिटीज, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट, हार्ट ब्लड प्रेशर का किसी को प्रॉब्लम हो तो अपने थिंग्स लाइक अनार खाना चाहिए, गाजर खाना चाहिए, बीटरूट इज नाइस, ग्रीन लीफी वेजिटेबल। अच्छा, नट्स एंड सीड समझते हैं आप लोग? अलसी का बीज, फ्लेक्स सीड, पंपकिन सीड, चिया सीड, यस नो लिखिए, चैट में लिखिए यस या नो, समझते हैं? ये अलग अलग प्रकार के बीज आते हैं, अलसी का बीज आता है, पंपकिन सीड्स, चिया सीड्स आते हैं। नाउ ये सब के अलग अलग फायदे हैं, बहुत इजीली मिलते हैं एंड हमें रेगुलर में खाना चाहिए, इससे भर भर के फायदे, भर भर के फायदे। ओके, नाउ सो नट्स एंड सीड्स आर वेरी वेरी गुड फॉर हार्ट ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट, फैटी लिवर। ओके, फैटी लिवर के लिए अगेन थिंग्स लाइक मूली, रेडिश, पक्का पपीता, गार्लिक, ओके, अनार is very very nice. Next, अगर कैंसर से किसी को बचना हो या कैंसर के प्रिवेंट करना हो, सो थिंग्स लाइक ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बीन्स, सीड्स, ओके, गार्लिक, ओके, ये सब चीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, इंटरमिटेंट फास्टिंग। ओके, सो इंटरमिटेंट फास्टिंग पे हम आगे बात करेंगे, सो वी कैन स्किप नाउ। ओके, नेक्स्ट, ऑलराइट, नाउ few things which are very good to eat and few things that we should avoid. Next, so few things that we should eat regularly, things like things like green leafy vegetable, cruciferous vegetable, गोभी, पत्ता गोभी, ये सब खाना चाहिए। प्याज, ऑनियन, बीन्स, अच्छा ड्रमस्टिक समझते हैं आप लोग? यस नो आंसर करें। ड्रमस्टिक, डाठा जो सांबर के अंदर में होता है, ड्रमस्टिक मिलता है वहां पे? यस यस मिलता है। आप सबको मैं बताऊं, आप लोग सब कल 1 किलो ड्रमस्टिक लेके जाएंगे। पूरी दुनिया में नंबर 1 फॉर इम्यूनिटी इज ड्रमस्टिक। आप समझे? इम्यूनिटी के लिए दुनिया में नंबर 1 इज ड्रमस्टिक। अगर ब्लड प्रेशर के लिए इट इज वेरी गुड, डायबिटीज के लिए इट इज वेरी गुड,
अगर किसी को घुटने का प्रॉब्लम है, तो अर्थराइटिस है, तो इट इज वेरी वेरी गुड। उसमें अनगिनत कैल्शियम है, एनर्जी बढ़ता है, लंग्स के लिए अच्छा। सो ड्रम स्टिक इज वेरी वेरी गुड फॉर ओवरऑल इम्यूनिटी। और इस पीरियड में हमें डेफिनेटली खाना चाहिए। इट इज वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर इम्यूनिटी ऑल्सो। सो ड्रम स्टिक आप लोग सब खाएंगे, उसमें हम आगे और चर्चा भी करेंगे कैसे खाना, कब खाना। सो ये सब चीजें, पपीता, अनार, ये सब हमें खाना चाहिए। नेक्स्ट, क्या क्या चीज हमें अवॉइड करना चाहिए? अगेन, रेड मीट जो है नंबर वन कैंसर कॉजिंग। ओके, रेड मीट नंबर वन कैंसर कॉजिंग। मैदा, ब्रेड, बिस्किट, ये सब कभी कभार ठीक है, रेगुलर हमें नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट इज यू नो again, white sugar. Okay, white sugar is something that we should all avoid. फ्राइड फूड्स, तला हुआ, कभी कभार सब चलता है, रेगुलरली हमें ये सब अवॉइड करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, बेसिक कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में हम बताते हैं। ओके, जो आजकल के काफी वुमेन्स फेस करते हैं, हम कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हाईलाइट किए, उस पे हम कुछ सोल्यूशन बताते हैं। सो नंबर वन इज ब्लोटिंग। काफी सारे जन को ब्लोटिंग का प्रॉब्लम रहता है, खाने के बाद पेट थोड़ा फुला हुआ लगता है, ब्लोटिंग रहता है। सो अगर किसी को कोई भी प्रकार का ब्लोटिंग लगे तो क्या करना चाहिए? सो नंबर वन आप कर सकते हैं, अजवाइन होता है ना, अजवाइन। सो अजवाइन को थोड़ा बॉईल करके अजवाइन का पानी पिए, उससे ब्लोटिंग कम होता है। या फिर लंच और डिनर के बाद आप इलायची होती है, छोटी सी इलायची। ओके, सो लंच और डिनर के बाद तुरंत एक छोटी इलायची खा ले, उससे काफी बेटर होता है, ब्लोटिंग बिकम्स मच बेटर। ओके, नेक्स्ट, सेकेंड है हार्मोनल इम्बैलेंस। आज देखो, पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड, ये सारी हार्मोनल प्रॉब्लम है। वजन बढ़ गया है, वजन कम करना है, तो हार्मोनल प्रॉब्लम है। तो हमें हार्मोनल बैलेंस करना बहुत जरूरी है। ना हार्मोनल बैलेंस के लिए वैसे तो 10 चीज होती है, पर एक चीज हम आपको बताते हैं जो हार्मोनल बैलेंस के लिए बहुत अच्छा है। नंबर वन, देर इज समथिंग नोन एज गोटा धनिया। गोटा धनिया समझते हैं आप? कोरिएंडर सीड्स। ओके, सो 2 चम्मच गोटा धनिया आप रात को 1 गिलास पानी में डालना। जब सुबह उठो, सबसे पहले बस छान के वो पानी पी लेना, गरम वरम कुछ नहीं करना है, बस छान के वो पानी पी लेना। दिस इज वेरी गुड फॉर थायराइड, वेरी गुड फॉर वेट लॉस, वेरी गुड फॉर हार्मोनल बैलेंस, वेरी गुड फॉर पीसीओडी, एंड वेरी वेरी सिंपल। ओके, नेक्स्ट, बैक पेन का काफी जन का कंप्लेन करते हैं कि हम किचन में काफी देर काम करते हैं, फिर बैक पेन होता है। सो देर इज समथिंग नोन एज चिया सीड्स। ओके, नाउ चिया सीड के बहुत फायदे हैं, थायराइड के लिए अच्छा, डायबिटीज के लिए अच्छा, वजन कम करता है, एनर्जी बहुत बढ़ाता है। पर एक उसका बहुत अच्छा फायदा है बैक पेन के लिए वो बहुत ही अच्छा है। करना क्या है, 2 चम्मच चिया सीड आप आधा ग्लास पानी में डालना, कम से कम 15-20 मिनट वो सोक रहेगा। ओके, कम से कम 15-20 मिनट वो सोक रहेगा। एंड फिर हमको क्या करना है, 15-20 मिनट सोक रहेगा और फिर हमको वो आधा ग्लास पानी पीना है और चिया सीड को घिट लेना है। ओके, वेरी वेरी सिंपल एंड इजीली मिलता है। आपको किसी को नहीं मिला, हमको बोलो, हम भेज देंगे आपके घर पे। पर चिया सीड खाओ, बहुत काम का चीज है। ओके, नेक्स्ट, वाटर रिटेंशन। काफी जन हम कंप्लेन करते हैं कि थोड़ा स्वेलिंग होता है, वाटर रिटेंशन होते हैं, कि हम जो बैंगल्स पहनते हैं, रिंग्स पहनते हैं, वो भारी हो जाते हैं, थोड़ा पैर में सूजन जैसा लगता है। सो देर इज समथिंग नोन एज बार्ली सीड्स। बार्ली सीड्स समझते हैं आप लोग? बार्ली के दाने आते हैं, है ना? सो 2 चम्मच बार्ली सीड्स आप रात को 1 गिलास पानी में डालें, सुबह जब आप उठो सबसे पहले छान के आप पानी पीना। दिस इज वेरी वेरी गुड फॉर वाटर रिटेंशन, और बॉडी में जितना एक्स्ट्रा वाटर होता है ना, वो सब निकल जाता है। ओके, नेक्स्ट, एनर्जी। अगर लथार्जी लगे, एनर्जी बढ़ाना हो, वीकनेस लगता हो, तो एक सिंपल सोल्यूशन है एप्पल एंड टमेटो जूस। तो 1 एप्पल लेना है, 2 टमाटर लेना है, उसका फ्रेश जूस घर पे बनेगा एप्पल एंड टमेटो का,
और उसका जूस आप पीना, उससे एनर्जी बहुत बढ़ता है और न्यूट्रिशन भर भर के मिलता है। नेक्स्ट, स्किन। अगेन स्किन के लिए फ्रेश आंवला जो होता है ना, दैट इज वेरी वेरी गुड। सो फ्रेश आंवला जो है उसको हम यूज करें। एंड फ्रेश आंवला बॉटल में काफी आता है आजकल, आंवला जूस रेडीमेड मिलता है काफी, वो नहीं लेना चाहिए, उसमें काफी प्रिजर्वेटिव्स, चीनी होता है। जो फ्रेश आंवला होता है ना, उसको हमें जूस में डालने के, मौसम्बी का जूस पियो उसमें आंवला डाल दो, एप्पल अनार का जूस पियो उसमें आंवला डाल दो। सो आंवला फ्रेश जूस में डाल के लो, उससे स्किन के लिए अच्छा है। नेक्स्ट, ओवरवेट। अगेन ओवरवेट में अगेन which is very very effective is empty stomach fruit। खाली पेट हमें फल खाना है, इससे वजन में फर्क अच्छा पड़ता है। काफी जन उठ के क्या करते हैं हम लोग, चाय बिस्किट पोहा भुजिया नाश्ता कर लेते हैं। नो, खाली पेट फल खाना है, वेरी वेरी गुड फॉर हेल्थ। नेक्स्ट, गट हेल्थ। गट मतलब हमारे पेट के अंदर जो करोड़ों बैक्टीरिया है वो हेल्दी रहने बहुत जरूरी है। ओके, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो उसके लिए जस्ट गो बैक, गट हेल्थ के लिए क्या करना है, तो अगेन प्लांट फूड खाना बहुत जरूरी है। पर उसके अलावा हम जो करेंगे वो है, देयर इज समथिंग नोन एज, ये संगीता जी वैसे आप कर सकते हैं, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। ओके, नाउ गट हेल्थ के लिए देयर इज समथिंग नोन एज एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर इज अ प्रीबायोटिक विच इज वेरी वेरी गुड फॉर गट। तो करना क्या है, आधा चम्मच, हाफ टी स्पून, 1 गिलास पानी में डालना है, लंच और डिनर के आधे घंटे पहले लेना, इससे हमारे गट प्रॉब्लम्स बेटर होते हैं। राइट, नेक्स्ट, नाउ योगर्ट हैज प्रोबायोटिक, एप्पल साइडर विनेगर हैज प्रीबायोटिक, और काफी सारे ऑप्शन है प्रोबायोटिक के। यस, योगर्ट इज ऑल्सो ओके, नो प्रॉब्लम। नाउ basic do's and don'ts। okay, नाउ नंबर 1, एम्प्टी स्टमक फ्रूट खाना चाहिए। सीजनल फ्रूट पे जोर देंगे, पपीता अनार मैंगो लीची जो भी सीजन का है वो खाना चाहिए। नंबर 2, ग्रीन वेजिटेबल पे जोर देना है। आलू पसंद है, आलू खाओ, आलू में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ग्रीन वेजिटेबल खाना चाहिए, उसमें बहुत अच्छे अच्छे फायदे होते हैं। नेक्स्ट, गैजेट्स एंड मील। खाते खाते हमें गैजेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नॉट गुड फॉर डाइजेशन। नेक्स्ट, डेयरीज। ओके, सो अगेन मिल्क, मैदा, तला हुआ पैकेट फूड, ये सब चीज जो है ये हमें इस्तेमाल कम करना चाहिए, नॉट गुड फॉर ओवरऑल हेल्थ। सो कभी कभार इट इज ओके, नॉट रेगुलरली। एंड लास्ट पॉइंट है 30 to 45 मिनट्स हमें रेगुलर में एक्सरसाइज करना चाहिए, फिजिकली एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। ओके, नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड अभी जो हम आपको बताने वाले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसे ध्यान से सुने और ध्यान से इसको अमल करें। सो गुड हेल्थ के 4 पिलर्स होते हैं। नंबर 1 इज फूड एंड न्यूट्रिशन। ओके, नंबर 2 इज फिजिकली बीइंग एक्टिव। नंबर 3 इज गुड क्वालिटी स्लीप। नींद अच्छा होना बहुत जरूरी है, और जिनको नींद की प्रॉब्लम है, आज हम आपको 3-4 ऐसे रामबाण बताएंगे जिससे आपकी नींद बहुत अच्छी हो सकती है। नेक्स्ट एंड लास्ट इज इमोशनल हेल्थ। ये 4 चीज जो है ना, ध्यान से देखो। यस शुभ्रा जी, एप्पल बनाना सब चलता है मॉर्निंग में, नॉट अ प्रॉब्लम। नाउ ध्यान से समझे, ध्यान से समझेंगे। गुड हेल्थ के 4 पिलर्स होते हैं। ओके, नंबर 1 इज फिजिकली बीइंग एक्टिव, नंबर 2 is right nutrition, number 3 is good sleep, and number 4 is emotional health। ये चारों पिलर अच्छे रहना बहुत जरूरी है। हमें खाना भी अच्छा खाना है, फिजिकली भी एक्टिव रहना है, गुड क्वालिटी स्लीप एंड इमोशनल हेल्थ, ये चारों चीज पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ
अभी हम आपके सामने एक पीडीएफ शेयर करेंगे जिसमें हम अभी तक हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि क्या करना चाहिए, क्या राइट होना चाहिए। अभी हम आपको स्पेसिफिक चीजें बताएंगे, कल से आप ये खाओ, इससे आपको इम्यूनिटी बढ़ेगा। तो ये चीज पे आप ध्यान देंगे, अभी ध्यान से समझेंगे, हम आपको कुछ चीजें बताएंगे। सो आपके सामने अभी है नेक्स्ट, आपके सामने अभी है इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड्स। नेक्स्ट इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड्स आपके सामने है अभी। सो नंबर 1 ड्रमस्टिक। ड्रमस्टिक की हमने जैसे बात की है, ओके। सो दुनिया में नंबर 1 फॉर इम्यूनिटी, ओके। कैसे खाना है, इसको बॉईल करेंगे, बॉईल करके इसको बॉईल करके इसको सूप में डाल सकते हैं, या फिर लंच एंड डिनर के पहले, लंच एंड डिनर के पहले छोटे छोटे अपने 5-6 पीसीज ले ले, और बस हमें उसको बॉईल किया हुआ है 5-6 पीसीज छोटे छोटे उंगली के साइज के ले ले, और बस उसे चूस के ऊपर का फेंक दे, ओके। एंड या फिर हम सूप में भी डाल सकते हैं, बट दिन में हमारे अंदर 1-2 बार ड्रमस्टिक जाना चाहिए। सेकेंड इज कोकोनट वाटर एंड लेमन, ओके। कोकोनट वाटर एंड लेमन। नाउ अगर डाब के पानी में, अगर हमारे अब लेमन ऐड करे, थोड़ा सा लेमन ऐड करो, सो कोकोनट वाटर एंड लेमन से विटामिन सी, आधा नींबू डालो, उससे विटामिन सी गोज अप 10 टाइम्स, ओके। 10 टाइम्स विटामिन सी लेवल बढ़ता है, जिससे हमारा ओवरऑल इम्यूनिटी अच्छा होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। नंबर 3 ऑनियन, गार्लिक, टर्मरिक। ये सब चीज काफी घरों में अवेलेबल है। ऑनियन मैंने पर्सनली 25 एक रिसर्च पेपर पढ़े हैं वेयर ऑनियंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इम्यूनिटी। गार्लिक, टर्मरिक, ये सब भी घर पे अवेलेबल होता है। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी यूज इट, ओके। नंबर 4 पंपकिन सीड्स। पंपकिन सीड हमारे पास ना हमारे पास हर हफ्ते 20-25 कैंसर पेशेंट आते हैं ऑन एन एवरेज। 20 से 25 कैंसर पेशेंट हर हफ्ते हम देखते हैं, और उन सारे पेशेंट को हम एक चीज जरूर देखते हैं, एक चीज जरूर देते हैं, दैट इज पंपकिन सीड्स। पंपकिन सीड्स इज रामबाण फॉर इम्यूनिटी, फॉर वेट लॉस, फॉर डायबिटीज, फॉर ब्लड प्रेशर, फॉर प्रोस्टेट के लिए बहुत बहुत काम का चीज है, और इम्यूनिटी बहुत बढ़ाता है। उसका रेडीमेड पैकेट मिलता है, और एक डब्बी में भर दीजिए 3-4 चम्मच, ओके, 3-4 चम्मच, ओके। हमें बस दिन में सौंफ की तरह चबा के खाना है। इट इज वेरी वेरी गुड फॉर आवर ओवरऑल इम्यूनिटी, ओके। नेक्स्ट रेड कैप्सिकम। जितना विटामिन सी संतरा मौसम्बी में होता है, उसका 3 गुना ज्यादा रेड कैप्सिकम में होता है, जिससे हमारा ओवरऑल इम्यूनिटी अच्छा होता है। नेक्स्ट फोकस ऑन होलिस्टिक हेल्थ, थिंग्स लाइक प्राणायाम, योगा, प्राणायाम, स्ट्रेस नहीं लेना, नींद अच्छा होना, ये सब चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ओवरऑल हेल्थ। ये हमें रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहिए। नेक्स्ट नाउ पका हुआ खाना दिन में 2 बार खाना चाहिए। नंबर 1 इज लंच एंड नंबर 2 इज डिनर। जैसे हमने बात किया, लंच एंड डिनर में ही रोटी सब्जी दाल चावल पका हुआ खाना खाना चाहिए। उसके अलावा पूरे दिन में हमें प्लांट फूड खाना चाहिए, जैसे विच कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट, एम्प्टी स्टमक फ्रूट खाना चाहिए। फिर खाने के पहले बोल ऑफ सैलेड खाएंगे। सो थिंग्स लाइक रेड येलो ग्रीन कैप्सिकम हो गया, गाजर हो गया, खीरा हो गया, बीट रूट हो गया, ड्रमस्टिक हो गया, जो आपको मिले, जो आपको पसंद हो, 2-4 आइटम लेना चाहिए, और अ बोल ऑफ सैलेड हमें लंच और डिनर के पहले खाना चाहिए, ओके। नेक्स्ट इसके बारे में हमने काफी सुना है, सोशल। नेक्स्ट so things like social distancing, avoid going to places, crowded places, ये सब हम काफी सुन रहे हैं 2 महीने से, और ये हमें फॉलो करना चाहिए और इसको अमल करना चाहिए। तो इस पे हम ज्यादा डिटेल शेयर नहीं करेंगे, बट दिस इज समथिंग दैट वी ऑल नो। अभी हम आपके साथ 10 थिंग्स शेयर करेंगे
जो आप कल से कर सकते हैं। 10 थिंग्स जो हम आपको शेयर करेंगे जो आप कल से कर सकते हैं, एंड इससे आपकी ओवरऑल हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट, नंबर 1, देयर इज समथिंग नोन एज फर्मेंटेड राइस और पांता भात। सुना आप लोग ने? किसी ने यस नो जवाब दे, चैट बॉक्स में डालेंगे यस नो। नो। ओके, काफी काम का चीज है ये। बंगाल, बिहार, उड़ीसा साइड में काफी लोग लेते हैं। आप लोग ध्यान से समझो, इसके बहुत सिंपल चीज है, भर भर के फायदा। क्या चीज है ये? सो पांता भात मतलब ऑल्सो नोन एज फर्मेंटेड राइस। ओके, नाउ करना क्या है, हम लोग सब काफी जन हम लोग लंच या डिनर में चावल खाते हैं, राइस दाल हम लोग खाते हैं। नाउ करना क्या है, जो पका हुआ चावल है ना, कुक्ड राइस, 2 चम्मच लेना है। ओके, 2 चम्मच लेना है। परफेक्ट, 2 चम्मच लेना है और उसको आधा ग्लास पानी में रात को डालना है। आधा ग्लास पानी में रात को डालना है, 2 चम्मच पका हुआ राइस, कुक्ड राइस को, एंड रात भर उसको पानी में रहने देना। सुबह जब उठो, सबसे पहले सुबह उठो जब सबसे पहले हमें वो आधा ग्लास पानी पी लेना, और हमें वो 2 चम्मच चावल भी खा लेना है। दिस इज वेरी वेरी गुड फॉर आवर स्टमक एंड गट के लिए। नेचुरल प्रोबायोटिक है, जैसे दही काम करता है ना, उससे ज्यादा ये काम करता है प्रोबायोटिक। वेरी वेरी गुड फॉर स्टमक। किसी को कोलाइटिस का प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम, वेरी वेरी गुड। या छत्तीसगढ़ में बादी भात। ओके, नाउ वेरी वेरी गुड। किसी को कोलाइटिस का प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन, गैस का प्रॉब्लम, स्टमक पेन का प्रॉब्लम, दिस इज वेरी वेरी गुड व्हेन इट कम्स टू ओवरऑल हेल्थ। ओके, नेक्स्ट, second, yeah, this is second thing that you can do is drumstick. So drumstick के हमने बात किया, ड्रमस्टिक पे हमने बात किया। नंबर 1 इज बेनिफिट वाइज इज इम्यूनिटी के लिए अच्छा है, ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा है, डायबिटीज के लिए अच्छा है, घुटने के लिए अच्छा है, वेरी वेरी गुड फॉर हेल्थ। हमें रेगुलर ये खाना चाहिए। नेक्स्ट, एम्प्टी स्टमक फ्रूट, जो सीजन का चीज है, मैंगो है, लीची है, देन वी हैव पपीता है, अनार है, अमरूद है, जो भी सीजनल अवेलेबल है उस पे हम ध्यान देंगे, पर खाली पेट हमें फल खाना जरूरी है। नेक्स्ट, नाउ देयर इज समथिंग नोन एज जीरा वाटर। ध्यान से समझे, ध्यान से समझो। चाय कॉफी, दूध वाला चाय, दूध वाली कॉफी हमारे लिए अच्छा है कि बुरा है? वो अंदर जाके कुछ अच्छा नहीं करेगा। आशा जी बोल रहे हैं आप बुरा है, हम देख रहे हैं आपको। यस, सो ऐसा है कि चाय और कॉफी अंदर जाके कुछ अच्छा करेगा नहीं। ठीक है, तो कभी कभार अलग बात है, कोई आए, गेस्ट आए, सब बैठ के पी रहे हैं, हमने ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, पर रेगुलर हमारे अंदर नहीं जाना चाहिए। ओके, सो रेगुलर में अगर पीना है, रोज चाय की तरह कुछ गर्म चाहिए, तो क्या पिएंगे? देयर इज समथिंग नोन एज जीरा वाटर। ध्यान से समझो, दिस इज वेरी 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 गुड फॉर हेल्थ। ओके, सो 1 गिलास पानी गर्म करेंगे। ओके, 1 गिलास पानी गर्म करेंगे एंड 1 चम्मच जीरा डालना, 4-5 तुलसी, पुदीना, अजवाइन, सौंफ कुछ डाल सकते हैं। इसको उबाल के 1 गिलास को आधा करो, छान के चाय के कप में डालो, थोड़ा सा नींबू डाल के जीरा पानी आपको पीना है। ओके, जीरा पानी आपको पीना है, एंड ट्रस्ट मी, जीरा पानी से पूरा बॉडी क्लीन होता है, सारा टॉक्सिक निकलता है, वजन कम करता है, सिस्टम के लिए अच्छा, बीपी के लिए अच्छा, कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छा, गैस एसिडिटी के लिए बहुत अच्छा है। तो आज हमारा सेशन के बाद 4:30 किसी को आपको चाय कॉफी पीना हो तो आप लोग चाय कॉफी नहीं पियेंगे, हमको याद करेंगे और जीरा पानी पियेंगे। ओके, इससे पूरा सिस्टम हल्का लगता है। जिनको भी गैस एसिडिटी का प्रॉब्लम, आप 1 चम्मच जीरा डालो, आधा चम्मच अजवाइन डालो, बॉईल करके वो काढ़ा पियो, 5-6 दिन में। बट जीरा पानी हमारे अंदर जाना चाहिए, सुबह शाम, दिन में 2 बार 3 बार, जब चाय पीना हो अपने जीरा पानी पिएंगे। नेक्स्ट, योगा प्राणायाम। योगा से फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ता है, इम्यूनिटी बढ़ता है, प्राणायाम इज गुड फॉर लंग्स। ये सब चीज हमें रेगुलर करना चाहिए। नेक्स्ट,
इंटरमिटेंट फास्टिंग, नाउ इस पे हम बात करने वाले थे। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है, ध्यान से समझेंगे। जिस टाइम में हमारा डिनर होता है उस टाइम से 12 घंटे हमारे अंदर कुछ नहीं जाना चाहिए। मतलब रात को 8 बजे डिनर किए तो सुबह 8 बजे, रात को 8 बजे डिनर किए तो सुबह 8 बजे हम जीरा पानी, पांता भात, फ्रूट किसी से भी चालू करेंगे। परंतु परंतु 12 घंटा, रात को 8 बजे खा लिए तो सुबह 8 बजे, 12 घंटा हमारे अंदर कुछ नहीं जाना चाहिए। ओके, 12 घंटा हमारे अंदर कुछ नहीं जाना चाहिए। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो नेक्स्ट, बहुत फायदा मिलता है, बहुत फायदा मिलता है। नेक्स्ट, गुड बाय टू ऑल एडिक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, अलग अलग लोगों को अलग अलग चीजों का एडिक्शन, किसी को दूध की चाय का एडिक्शन, किसी को ब्लैक कॉफी का एडिक्शन, किसी को पान पराग का एडिक्शन। ओके, सो कोई भी चीज का एडिक्शन हमें नहीं होना चाहिए। बहुत जन आते हैं दिन में 3 बार 4 बार चाय पीते हैं। ओके, चाय नहीं पियेंगे तो माथा दुखेगा। अरे कभी कभी पीना है तो पी लीजिए, हफ्ते में 1 बार 2 बार पी लीजिए, पर रोज रोज हमको चाय के बिना नहीं चलता है, ये गलत बात। काफी जन हंस रहे हैं, ये बात सुन के काफी जन हंस रहे हैं कि हाँ हमारा भी एडिक्शन नहीं। देखो पॉइंट को समझो, पॉइंट को समझो। हम लोग आफ्टर ऑल कौन है, हम लोग कौन है, वी आर पावरफुल सोल, राइट। हम आत्मा है, हम कॉन्शियसनेस है। हमें कोई चीज का एडिक्शन नहीं होना चाहिए। ओके, हमें कोई चीज का एडिक्शन नहीं होना चाहिए। आपको अगर चाय पीना है हफ्ते में 1 बार पीजिए, 2 बार पीजिए, आई डोंट माइंड, पर उसका एडिक्शन नहीं होना चाहिए। ओके, सो जो भी चीज का एडिक्शन है उसको आप धीरे धीरे अवॉइड करो, दैट विल हेल्प। ओके, नेक्स्ट, हैविंग सीड्स रेगुलरली, तो हमने पंपकिन सीड्स के बारे में बताया। ओके, पंपकिन सीड्स के बारे में बताए। सो पंपकिन सीड्स होते हैं, वैसे ही हमारे अलसी का बीज होता है, फ्लैक्स सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, चिया सीड्स। तो ये सब चीज आर वेरी वेरी हेल्दी, वेरी वेरी सिंपल, इजीली मिल जाते हैं। बस डब्बी में भरना है, 3-4 चम्मच सॉफ की तरह चबा के खाना है। नेक्स्ट, नींद अच्छा होना बहुत जरूरी है। हमारा नींद अच्छा होना बहुत जरूरी है। नींद अच्छे होने के लिए हमारे बॉडी में मेलेटोनिन नाम का हार्मोन होता है। अगर मेलेटोनिन नाम का हार्मोन हमारे बॉडी सही मात्रा में बनाए, तो हमारा सही मात्रा में और सही टाइम में बनाए, तो हमको नींद अच्छा आता है। जिनको भी नींद का प्रॉब्लम है, 3 चीज जिससे नींद बहुत अच्छा होगा। नंबर वन इज जायफल। जायफल समझते हैं आप लोग, जायफल हिंदी में, इंग्लिश में नटमेग कहते हैं। उससे नींद, स्लीपिंग हार्मोन्स अच्छे रिलीज होते हैं। सो घिस के पाउडर बनाना है, 1/4 टीस्पून जायफल को पाउडर बना के शाम के टाइम में कोई भी फल के साथ खाएंगे, इससे नींद अच्छा आता है। सेकेंड, पिस्ता समझते हैं, पिस्ता। सो ड्राई फ्रूट होता है पिस्ता, इजीली मिलता है सब जगह। पिस्ता में मेलेटोनिन नाम का हार्मोन काफी होता है। सो अगर हम मुट्ठी भर पिस्ता सुबह शाम खाएं तो इससे भी नींद थोड़ा बेटर होता है। और नंबर 3, पंपकिन सीड जो हमने आपको बताया, दैट इज वेरी वेरी गुड फॉर स्लीप ऑल्सो। नेक्स्ट, इमोशनल हेल्थ की हमने बात की थी। हमारे दिमाग को हम गार्बेज नहीं बना सकते हैं, हमें स्ट्रेस नहीं लेना है। ओके, हम इतने जन को दिन में, हर दिन हम 18-20 नए पेशेंट को मिलते हैं, उनके साथ काफी टाइम स्पेंड करते हैं, उनके साथ बातें करते हैं। और एक चीज हमें रियलाइज होता है कि लोग अननेसेसरी स्ट्रेस लेते हैं, पास्ट के बारे में, पुरानी बातों के बारे में। अरे सबसे इंपॉर्टेंट है आप और आपकी हेल्थ, इससे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। आप ठीक तो सब कुछ ठीक है। ओके, सो हमें ये बात समझनी है। एंड we need to understand that emotional health is very very important. Okay, so therefore हमें मेडिटेशन इज वेरी वेरी गुड। दिन में 2 बार, सुबह रात को, सुबह शाम, कोई भी दिन में 2 बार करो। 20 मिनट फोकस करके मेडिटेशन करना चाहिए। उससे माइंड बहुत रिलैक्स होता है, स्ट्रेस लेवल्स कम होते हैं, एंड आपको अंदर से अच्छा लगता है।
Okay, great. So we need to understand that ये 10 चीज जो हमने आपको बताई ना, very quickly if we can run through, Shruti. So number 1 was Pantabhat, number 2 was drumstick, very good for immunity. Number 3 was empty stomach fruit, seasonal fruit खाना चाहिए. Number 4 is जीरा पानी, जो आप लोग सब आज शाम से चालू कर देंगे. Number 5 is yoga, pranayam, very very good habit. Number next is intermittent fasting, minimum 12 घंटा हमें करना चाहिए. Next is goodbye to all addictions, कोई भी चीज का addiction हमें नहीं होना चाहिए. And next is having seeds regularly, okay, things like pumpkin, sunflowers, chia seeds. Next is again नींद अच्छा होना चाहिए, उसके लिए जायफल, उसके लिए पिस्ता, उसके लिए pumpkin seeds करें. उसके बाद भी दिक्कत हो तो हमें बताना, और 5 चीज बता देंगे. और last is meditation, very very good for emotional health. Okay, now just go back. नाउ ये सब चीज जो है ना, ये हमें इजीली करना चाहिए, और अगर हम ये सब चीज फॉलो करेंगे तो हमारी हेल्थ काफी अच्छी हो जाएगी. एंड जब अच्छा हेल्थ होता है तब अच्छी स्टोरीज बनती है और अच्छे रिजल्ट्स आते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट, सो स्मॉल गर्ल, ओके, यंग गर्ल प्रीति सराफ, किडनी प्रॉब्लम, अर्थराइटिस प्रॉब्लम, थायराइड प्रॉब्लम, खाना पीना अच्छा किया और आज सारे चीज से मुक्त है. नेक्स्ट, हम लोग ने वेरिकोज वेन्स सुना है ना, पैर में प्रॉब्लम होता है वेरिकोज वेन्स. तो जैसे वेरिकोज वेन्स होता है वैसे एक बीमारी होती है वस्क्यूलाइटिस, जो वेरिकोज वेन्स के ज्यादा प्रॉब्लम देती है. तो इस लेडी को, यंग गर्ल अगेन, कुलदीप कौर, उनको ये प्रॉब्लम था वेरिकोज वेन्स का, सॉरी वस्क्यूलाइटिस का. उनके बहुत पैर पे रेड रेड ब्लड वेसल्स दिखते थे. ओके, सो उन्होंने 9 महीना लगा, 9 महीना इन्होंने अच्छा खाना पीना किया. ओके, और काफी उनकी हेल्थ अच्छी हुई और आज उनकी सारी चीज अच्छी हो गई है. ओके, नेक्स्ट, 81 इयर्स के इंसान, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, किडनी प्रॉब्लम, आज उनकी सारी चीज अच्छी हो गई है, मेडिसिन बंद हो गई है, रिपोर्ट एकदम फर्स्ट क्लास. ओके, नेक्स्ट अगेन उत्तरा जी, इनको ओवरवेट प्रॉब्लम, गैस एसिडिटी प्रॉब्लम, लेथार्जी लगना, और आज उनका 8-10 किलो कम हो गया है. शी इज वेरी वेरी हैप्पी. ओके, अगेन ये 8 गोली खाते थे दिन का, 8 गोली, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल मिला के 8 गोली, 110 वजन था, आज उनका वजन है 82 kg, और 8 गोली सारी बंद हो गई है, शुगर एकदम नॉर्मल. और 3 दिन पहले इनका लंबा सा टेस्टिमोनियल हमारे फेसबुक पेज में भी था, एंड इनके फोटो वोटो के साथ. तो ऐसे हम ना रोज देखते हैं, रोज हमें बस सही चीज करने की देरी है, एंड रिजल्ट अपने आप मिलता है. ओके, सो थैंक यू वंस अगेन एवरीवन फॉर कमिंग इन. एंड किसी को कोई प्रश्न है आप हमें लिख सकते हैं, हम आपको आंसर करेंगे. और हमारे परिवार में भी जुड़ने के लिए आपका बहुत बड़ा स्वागत है. कोई भी इंसान आप लोग में से जो इस कॉन्सेप्ट में बिलीव करे कि हमारा खाना पीना ही हमारी मेडिसिन है, फूड इज आवर मेडिसिन, अगर आप इसमें बिलीव करते हैं, और अगर आप बिलीव करते हैं कि हम अंदर से सही खाना खा के हम अंदर से फिट हो सकते हैं, और इस कॉन्सेप्ट को स्प्रेड करना है, तो हमारे साथ जुड़े. और हम चाहेंगे कि कॉन्सेप्ट हम घरों घरों तक लेके जाएं, जिससे बहुत जन का फायदा हो. थैंक यू सो मच एवरीवन. एंड एक चीज याद रखना, आपकी हेल्थ इज इन योर हैंड, एंड सही रहना is in our kitchen. Health is in our kitchen and not at a doctor's chamber. Thank you so much everyone for being there. ये PDF हम आप लोग को भेज देंगे, and any questions you have you can ask. Gargi, if you have anything to announce, we can do it. After that we can take questions. Hello sir. Gargi? Yes, thank you so much. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे इतने सारे लोग हैं एंड उन्होंने सब सुना है, एंड आई एम रियली श्योर कि हम लोग कुछ आपको समझा पाए कि आप अपनी हेल्थ को, आप अपनी डिजीज को कैसे रिवर्स कर सकते हैं. एंड जैसे हम आपको समझाते हैं, हम चाहते हैं, बहुत पूरी इंडिया में क्या है ना, बहुत ज्यादा लाइफस्टाइल डिजीज है. आज हर घर पे बीपी है, डायबिटीज है, बैक के इश्यूज है, माइग्रेन के इश्यूज हैं, एंड ये सब खाने पीने से ठीक हो सकते हैं. एंड हम चाहते हैं कि सारे लोगों को इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता चले. तो अगर आप चाहते हैं कि आप भी इस पूरे जर्नी का हिस्सा बने और लोगों को हेल्प करें ताकि उनकी 10-12 जितनी भी गोली है या कोई मेडिसिन चल रही है वो सब बंद हो जाए, देन आप अपना नंबर और नेम यहाँ पे छोड़ सकते हैं चैट में.
we will get connected to you and we'll take this forward. Thank you so much. Shireen, we can take questions if there are any. Hello, sir. I want to ask something. बताइए ना. Can you hear me? Yeah. Sir, हम जो seeds use करते हैं वो कच्चा लेने की जगह अगर रोस्ट करके लें तो चलता है वो? क्या नाम है आपका? शिल्पा. शिल्पा जी. So सबसे पहले तो ऐसा है that pumpkin, sunflower, flax seeds इसको हल्का सा रोस्ट करके अपने ले सकते हैं, पर आप रोस्ट खुद ही करेंगे, घर पे करेंगे, ठीक है. बाहर से रोस्टेड वाला मत लाना, क्योंकि बाहर उन्होंने कितना रोस्ट किया है, सॉल्ट डाला है, नहीं डाला है, सॉल्टेड है, आई डोंट नो. सो ज्यादा रोस्ट करने से फिर न्यूट्रिशन कम होता है. ओके, न्यूट्रिएंट वैल्यू कम होती है. तो आप प्लेन खरीदना और हल्का सा रोस्ट करके खा सकते हैं, और प्लेन भी खा सकते हैं, नो प्रॉब्लम. और सर चिया सीड जैसे अगर हम पानी में भिगा के लेते चिया हैं, सीड को पानी में डालना है मिनिमम 15-20 हाँ, पर मिनट. वो थोड़ा चिपचिपा हो जाता है. हम हाँ, तो तो ले लेते हैं, लेकिन जैसे घर वाले लेते नहीं बच्चे, तो आप उसको थोड़ा और सा कैसे डालो. यूज कर सकते आप हैं? नहीं, बेस्ट वही है, पानी में डाल के आप क्या है ना, ज्यादा मत दो, आधा चम्मच डालो, एंड अपन 5-10 मिनट के बाद थोड़ा सा फूले, आप पानी को पी लो और घिट लो, नो प्रॉब्लम. अगर उसको घिटना है और कुछ नहीं करना है. अगर आपको लगे ये वो नहीं ले पा रहे हैं एक साथ, तो आप पानी का क्वांटिटी बढ़ाओ, आधा लीटर पानी में थोड़ा सा डालो, और जब दिन में उनको पानी पीना हो ना, उसी में से सिप सिप करके पिएंगे, एक साथ नहीं पिएंगे. तो जब सिप सिप करके पिएंगे तो थोड़ा थोड़ा चिया सीड जाते जाएगा, तो उनको मालूम भी नहीं चलेगा. ओके, चलेगा. थैंक यू सर. सर हेलो सर. या बोलिए. शिरीन कोऑर्डिनेट. हाँ बोलिए ना. हेलो सर, आई एम शुभ्रा व्यास. मैं पूछना चाहती हूँ कि टोमेटो रोज खा सकते हैं सर? इज इट एनी प्रॉब्लम इन ईटिंग टोमेटो? Cooked tomato is a problem. Cooked tomato is acidic in nature, but tomato अगर ऐसा फल की तरह खाना है, I don't mind. थैंक यू सर. Hello sir. Hello sir. Yeah. My name is Tanvi, and I wanted to ask what changes in food you can do to avoid acne or pimples, because all sorts of medicines are not helping me. ओके, सो देखिए, दो चीज है. सबसे पहले तो 80% एक्ने हमारे ऑल्दो स्किन में होता है, पर हमारे एक्ने का बता रहा सुन ले. एक्ने का जो है वो हमारे गट से काफी रिलेटेड होता है, तो हमारा गट क्लीन होना बहुत जरूरी है. ओके, नंबर 1. सो 4-5 चीज आप कर सकते हैं. सबसे पहले तो मिल्क मैदा को अवॉइड करना. मिल्क मैदा तला हुआ, इससे थोड़ी स्किन Okay. हाँ. एक्ने इज वेरी बैडली रिलेटेड ना, तो उसको अवॉइड करें. 4 चीज आप जो कर सकते हैं. पंपकिन समझते हैं? पंपकिन. हाँ. सो पंपकिन का या तो सूप पिए या उसका सब्जी बनाए, वेरी वेरी गुड फॉर स्किन, नंबर 1. नंबर 2, कड़ी पत्ता समझते हैं आप? कड़ी पत्ता. हाँ. कड़ी पत्ता बहुत इजीली मिल जाता है, मीठा कड़ी पत्ता. सो कड़ी पत्ता इज वेरी वेरी गुड फॉर स्किन एंड हेयर. हेयर और स्किन के लिए कड़ी पत्ता इज वेरी वेरी गुड. ओके. नंबर 3 जो आप और कर सकते हैं वो है स्किन के लिए मौसम्बी होता है. Yes, yes. मौसम्बी जो होता है ना, मौसम्बी का जूस लेंगे आप. हाँ. मौसम्बी का जूस में आंवला भी फ्रेश डाल सकते हैं, वेरी वेरी गुड फॉर स्किन. चौथा चीज, हम लास्ट चीज और बताते हैं, विच इज अमेजिंग फॉर एक्जिमा. वो आप अप्लाई भी कर सकते हो, स्किन सोराइसिस और एक्जिमा में अप्लाई भी कर सकते हैं. पटेटो होता है ना, पटेटो. Yes. तो रॉ पटेटो का जूस बनाना. रॉ पटेटो Okay. बॉईल नहीं करना है, स्किन हटा के रॉ पटेटो का जूस बनाना. दैट इज वेरी अल्कलाइन. वो थोड़ा एक्जिमा वाले एरिया पे लगाना, एंड दैट इज वेरी वेरी गुड फॉर एक्जिमा. ये 4-5 चीज करो, बहुत अच्छा हो जाता है. Thank you. Thanks a lot. हेलो सर. सो मच. मेरा 4:30 बजे एक और सेशन है, सो थैंक यू सो मच. और कोई प्रश्न हो तो आप हमारे कॉन्टेक्ट आपके सामने है, आप उसमें डाल देना, वी विल आंसर. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग हियर. किसी को भी हमारे साथ जुड़ना हो, सो दैट आप ये कॉन्सेप्ट को स्प्रेड कर सकते हो आपके सिटी में. आप आपका नाम, नंबर और ब्रैकेट में लिख दीजिए हेल्थ एसोसिएट. हमारे पैन इंडिया में करीब 400-500 हेल्थ एसोसिएट्स हम बना रहे हैं, जो आपके अपनी सिटी में ये कॉन्सेप्ट को स्प्रेड कर सके. पर उसके लिए आपका इस चीज पे विश्वास होना बहुत जरूरी है कि फूड इज आवर बेस्ट मेडिसिन. थैंक यू सो मच एवरीवन. टेक केयर. गॉड ब्लेस यू. Thank you. sir. Karuna bhabhi, please do vote of thanks. Nice information. Invite to Karuna bhabhi, Thank you. please do vote of thanks. थैंक यू प्रीति. आप सबको आषाढ़ी एकादशी की शुभकामनाएं. विठ्ठल रुक्मणी की जोड़ी है न्यारी, जाऊं मैं उन पे वारी.
आषाढ़ी एकादशी के पावन अवसर पर करते हैं नम्र भाव से भक्ति, कोरोना से करो हम सबकी मुक्ति। मैं इनरव्हील क्लब ऑफ जलगांव ईस्ट की ओर से गेस्ट स्पीकर मिस्टर करण कक्कड़ जी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमें कोरोना के इस विकट परिस्थिति में इस बात से अवगत करवाया कि हमें अपने हेल्थ का कैसे ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि हम अपने तथा अपने परिवार की बीमारियों से बचा सके। करण सर, आपने जिस उद्देश्य से हमें यह जानकारी दी उसके लिए हमारा आभार शब्द काफी कम होता है। हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि आपके द्वारा दी गई जानकारी को अपने लाइफस्टाइल में लाने की कोशिश करेंगे। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रेसिडेंट प्रीति दोषी को, जिन्होंने मुझे इतने बड़े व्यक्तिमत्व का आभार प्रकट करने का अवसर दिया। जीवन में कुछ नया कर गुजरने की चाह रखने वाली क्लब की चहीती डीसी मिनल लाठी को भी धन्यवाद देती हूँ। साथ में धन्यवाद देती हूँ वेबिनार में ज्वाइन हुए डिस्ट्रिक्ट वाइस चेयरमैन अश्विनी गुजराती को, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी गीता जी को, हमारे क्लब की शान फर्स्ट ESO संगीता जी को, PDC नूतन जी को, एंड थैंक यू प्रोजेक्ट चेयरमैन कार्तिकी, जिसकी वजह से हमें इतनी महत्वपूर्ण बातों का नॉलेज मिला। अंत में धन्यवाद देती हूँ जूम मीटिंग में शामिल हुई मेरी सभी सहेलियों का, और आशा करती हूँ कि वे दिए गए टिप्स के अनुसार अपने तथा अपने परिवार को सुरक्षित रखने की कोशिश करेंगे। अंत में इतना ही कहना चाहूंगी, आशा को दीपक की किरण मानकर हमें इस अंधकार रूपी संकट से एक नया सवेरा लेकर उभरना होगा। इसी आशा के साथ मैं इस कार्यक्रम को विराम देती हूँ। थैंक यू। Karuna, very nice vote of thanks, Karuna. थैंक यू संगीता भाभी। आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है करुणा मेरे को। और बहुत अच्छा करुणा, बहुत अच्छा हुआ, vote of thanks. वेरी नाइस। अच्छा हुआ क्या? हेलो एक मिनट। हाँ बोलो प्रीति। एक मिनट। Thank you so much everyone to spare some moments and join this webinar. I hope so all this information given by Karanji Kakkad will be very useful and everyone life. Thank you so much. हेलो Very nice. हेलो Very nice प्रीति। program. हेलो प्रीति, हाँ बोलो। अपना नेक्स्ट जो सेशन है उसका भी बता दो, 5, 6, 7 को लेने जा रहे हैं। प्रीति 1 ही मिनट बचा है यह मीटिंग खत्म होने को, 1 मिनट में मीटिंग बंद हो जाएगी। ओके नेक्स्ट सेमिनार आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू, बाय। Thank you, Preeti. Bye. Bye. कार्तिकी, thank you so much. अभिनंदन आपको। थैंक यू नूतन जी, नमस्ते। मेरा कॉलर टाइट हो रहा है कि हमारे कक्कड़ जी आए थे। मैं भी कक्कड़ हूँ ना। हाँ बरोबर। चलो एंजॉय किया। हाँ ओके, फॉलो बहुत करेंगे अच्छा पूरा। सेशन था उनका। बहुत अच्छा प्रीति, वेरी नाइस स्टार्ट। थैंक यू भाभी। उसको डेली लाइफ में फॉलो करेंगे। बहुत बढ़िया रखा था प्रोग्राम। कार्तिकी थैंक यू। थैंक यू। आप लोगों को सबको पसंद आया और सब अपनी लाइफ में ये सारे टिप्स को यूज करिए प्लीज, हेल्दी रहने के लिए। आज से ये साल तो शुरू हो रहा है, लेकिन इसके साथ हम सब हेल्दी भी बनेंगे, ये भी हमको आज से ही स्टार्ट करना है। हाँ प्रॉमिस किया है सबको, आपको करना है, सभी को करना ही है। हाँ मैंने प्रॉमिस किया है, सबको ये करना है। मीटिंग एंड कर रही हूँ। मीटिंग अब जाके जीरो पानी पियो। मीटिंग जीरो पानी पियो। बाय। प्रीति अगर रिकॉर्डिंग किया